ਧੰਨ ਵਾਖੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਦੋਏ ਕਰ ਜੋੜ ਮੰਗੂ ਇਕ ਦਾਨਾ, ਸਾਹਿਬ ਤੁਠੇ ਪਾਵਾ। ਦੋਏ ਕਰ ਜੋੜ ਮੰਗੂ ਇਕ ਦਾਨਾ, ਸਾਹਿਬ ਤੁਠੇ ਪਾਵਾ। ਸਾਸ ਸਾਸ ਨਾਨਕ ਆਰਾਧੇ, ਆਠ ਪਹਿਰ ਗੁਣ ਗਾਵਾ। ਡੰਡੋਤ ਬੰਦਨ ਅਨੇਕ ਵਾਰ, ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰਥ। ਡੋਲਨ ਤੇ ਰਾਖੋ ਪ੍ਰਭੂ, ਨਾਨਕ ਦੇਹ ਕਰ ਹੱਥ। ਪਰਮ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਸੰਧਿਆ ਤੋਂ ਸਜੇ ਹੋਏ ਇਸ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀਵਾਨ ਦੀ ਆਪ ਜੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਭਾਈ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਕੀਰਤਨੀਏ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨਾਂ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਅੱਜ ਸੁਬਹ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸੰਗਤ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਤਿਲੰਗ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸ਼ਬਦ, ਉਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਆਪਾਂ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਪਾਠ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸੰਖੇਪ ਜੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਸਵੇਰੇ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਯਕ ਅਰਜ਼ ਗੁਫਤਮ ਪੇਸ਼ ਤੋ ਦਰ ਗੋਸ਼ ਕੁਨ ਕਰਤਾਰ, ਹੱਕਾ ਕਬੀਰ ਕਰੀਮ ਤੂੰ ਬੇਐਬ ਪਰਵਦਗਾਰ। ਦੁਨੀਆ ਮੁਕਾਮੇ ਫਾਨੀ ਤਹਿਕੀਕ ਦਿਲਦਾਨੀ, ਮਮ ਸਰ ਮੁਵੇ ਅਜ਼ਰਾਈਲ ਗਿਰਫਤੈ ਦਿਲ ਖੇਚ ਨਾ ਦਾਨੀ। ਰਹਾਉ ਜਨ ਪਿਸਰ ਪਦਰ ਬਿਰਾਦਰਾਂ, ਕਸ ਨੇਸ ਦਸਤੰਗੀਰ, ਆਖਿਰ ਬੇਅਫਤਮ ਕਸ ਨਾ ਦਾਰਦ, ਚੂੰ ਸ਼ਬਦ ਤਖਬੀਰ। ਸ਼ਬ ਰੋਜ਼ ਗਸ਼ਤਮ ਦਰ ਹਵਾ, ਕਰ ਦੇਮ ਬਦੀ ਖਿਆਲ, ਗਾਹੇ ਨਾ ਨੇਕੀ ਕਾਰ ਕਰਦਮ, ਮਮ ਈ ਚਿਨੀ ਅਹਵਾਲ। ਬਦ ਬਖਤ ਹਮ ਚੂ ਬਖੀਲ, ਗਾਫਿਲ ਬੇਨਜ਼ਰ ਬੇਬਾਕ, ਨਾਨਕ ਬਗੋਇਦ ਜਨ ਤੁਰਾ, ਤੇਰੇ
ਚਾਕਰਾਂ ਪਾ ਖਾਕ। ਇਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸ਼ਬਦ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਦੋ ਤੁਕਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਆਪਾਂ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਆਪ ਇਕਾਗਰਤਾ ਬਖਸ਼ਿਓ। ਪਹਿਲੀਆਂ ਦੋ ਤੁਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਨੇ, ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ, ਸੱਚ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੰਨ ਦੇ ਕੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣੋ। ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਬਦ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰੇ ਸਨ ਤੇ ਇੱਛਾ ਮੇਰੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅੱਖਰੀ ਅਰਥ ਸਮਝ ਪੈਣੇ ਅਤ ਲਾਜ਼ਮੀ। ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ ਯਕ ਅਰਜ਼ ਗੁਫਤਮ ਪੇਸ਼ ਤੋਂ ਸੁਭਾ ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਯਕ ਦਾ ਅਰਥ ਇੱਕ, ਅਰਜ਼ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਬੇਨਤੀ। ਪੇਸ਼ ਤੋਂ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣਾ ਪਿਆ। ਯਕ ਅਰਜ਼ ਗੁਫਤਮ ਪੇਸ਼ ਤੋਂ ਦਰ ਗੋਸ਼। ਦਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਵਿੱਚ, ਗੋਸ਼ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕੰਨ। ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਬਣ ਗਏ ਆਪਣੇ ਕੰਨ ਵਿੱਚ। ਯਕ ਅਰਜ਼ ਗੁਫਤਮ ਪੇਸ਼ ਤੋਂ ਦਰ ਗੋਸ਼ ਕੁਨ ਕਰਤਾਰ। ਕੁਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਰ, ਧਿਆਨ ਦੇ। ਕਰਤਾਰ ਦਾ ਅਰਥ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਚ ਅਰਥ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਦੀਵ ਕਾਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸੱਚੇ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਆਇਆ। ਤੇਰੇ ਸਨਮੁਖ ਬੇਨਤੀ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕੰਨ ਦੇ ਕੇ ਮੇਰੀ ਅਰਦਾਸ ਸੁਣ। ਪਰ ਇਸ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਨ ਆਇਆ, ਪਰ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ ਹਰ ਅਰਦਾਸ ਕੇਵਲ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸੱਚ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫਤ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਇਸ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਮੰਗਿਆ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਕ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ, ਹੱਕਾ, ਕਬੀਰ, ਕਰੀਮ ਤੂੰ, ਬੇਐਬ ਪਰਵਦਗਾਰ। ਸੁਭਾ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਹੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਦਾ ਅਰਥ ਹੀ ਅੱਖਰੀ ਅਰਥ ਹੈ ਸੱਚ। ਕਬੀਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਵੱਡਾ। ਕਰੀਮ ਦਾ ਆਖਰੀ ਅਰਥ ਕਰਾਂਗੇ ਬਖਸ਼ਿੰਦ, ਬਖਸ਼ਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਫਜ਼ਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਹੱਕਾ, ਕਬੀਰ, ਕਰੀਮ ਤੂੰ। ਇਸ ਤੁਕ ਤੇ ਇਸ ਲਫ਼ਜ਼ ਤੇ ਆਪਾਂ ਰੁਕੇ ਸੀ। ਬੇਐਬ, ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਐਬ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਅਗਲਾ ਬਚਨ ਨੇ ਪਰਵਦਗਾਰ। ਪਰਵਦਗਾਰ ਦਾ ਆਖਰੀ ਅਰਥ ਹੈ ਸਭ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਹੇ ਸਭ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਵਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ, ਵਾਸ਼ਨਾ ਤੋਂ ਮੁਕਤ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ, ਸਭ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਆਇਆ ਤੇ ਮੇਰੀ ਅਰਦਾਸ ਨੂੰ ਕੰਨ ਦੇ ਕੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ। ਸੁਬਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਕੀਤੇ, ਹੱਕਾ, ਕਰੀਬ, ਕਬੀਰ, ਕਰੀਮ। ਆਓ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਲਫ਼ਜ਼ ਰਹਿ ਗਏ ਸਨ, ਬੇਐਬ ਤੇ ਦੂਜਾ ਪਰਵਦਗਾਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਹਾਉ ਦੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਨੇ। ਇਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਆਪ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ। ਆਪ ਅਦਬ ਨਾਲ ਅਸੀਸ ਬਖਸ਼ਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਜੀ, ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਐਬ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ੀ ਅਰਥ ਵਿਕਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਵੈਸੇ ਦੋਸ਼, ਨੁਕਸ, ਔਗਣ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਰਿਆਵਾਚੀ ਅਰਥ ਬਣ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਬ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਐਬ ਨਹੀਂ। श्री गुरु गोबिंद सिंह जी का एक वचन है कि शुद्धता की शान हो, कि संतन के प्राण हो, कि दाता महादान हो, कि निर्दोखी निरंकार हो। बेऐब है, शुद्धता की शान हो। जिन्ना मर्जी कोई शुद्धता दी सचियारता दी गल करे, पर सच ए वे परवतगार वैगुरु आप जी तो शुद्ध, आप जी तो पवित्र कोई है ही नहीं। आप शुद्धता दा शिखर हो, सचियारता दा ऊपर वाला शिखर हो, शुद्धता की शान हो कि संतन के प्राण हो। इबादत करने वाले संत जना दे तुसी प्राण हो। ते नाल शब्द वरत्या कि शुद्धता की शान हो कि संतन के प्राण हो, कि दाता महादान हो, कि निर्दोखी निरंकार हो। हे निराकार परमात्मा तू निर्दोखी है, तेरे ऊपर कोई भी दोख नहीं, उन्होंने कोई ऐब है ही नहीं। इसी एक तो हो शब्द महाराज का मिलता है, वो शब्द सवई वैगुरु कबेती है
निर्जुर निरूप हो, बेऐब है वो, ਉਹਨੂੰ कोई रोग नहीं, ਉਹਨੂੰ कोई बीमारी नहीं, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ किस्म की कोई वासना नहीं। पर कमाल की गल, आप वासना तो मुक्त है ते वासना वालियां नाल संबंध बना के बैठा होया। नेह बिरकत स्नेह सबो तन, अपना कोई शरीर नहीं, अपना कोई आकार नहीं, हर शरीर वाले नूं मुहब्बत कर रहा है। उत्ते साहिब ने शब्द वरत्या, निर्जुर नरूप हो के सुंदर स्वरूप हो के भूपन के भूप हो के दाता महादान। ਉਹਦਾ अर्थ भी तेनों कोई ऐब नहीं, परमात्मा नूं किसी तरह का कोई ऐब नहीं, ਉਹਨੂੰ ना निंदिया दा, ना उस्तत दा, ना चंगे दा, ना मंदे दा, ना पाप दा, ना पुण्य दा, ਉਹਨੂੰ किसी तरह का कोई ऐब नहीं। इसे नूं सुबह अर्ज की सी, जाप विच साहिब ने कहा कि पाक बेऐब हैं। हजूर ने शब्द वरत्या कि परिपूर्ण परमात्मा तू ऐबां तो रहत बिल्कुल पाक है, पवित्र है। कि पाक बेऐब है, कि गैबुल गैब है, तू गुप्त विचों भी गुप्त है। जे कोई कह भी अदृष्ट है, तू अदृष्ट विच भी अदृष्ट है। कितनी सूक्ष्मता महाराज जी ने बरती कि पाक बेऐब है, कि गैबुल गैब है, कि अफुल गनाह है। हे मेरे सतगुरु प्रभु जी, बंदा जिन्ने भी गुनाह करदा है, तू इन्ना कृपालु है कि इंसान दे कीते हुए गुनाहां नूं भी खिमा कर देना। वो अफुल गुनाह है, वो गुनाह नहीं चितारदा। एक तां गल कि उस अगे जिस विच कोई ऐब नहीं, ऐब तो रहत है। सच ए दास ने एक बार बेनती की सी, इस दुनिया विच कोई खरियो बूट है नहीं तो हर बंदे विच कोई ना कोई नुक्स रब ने पाए हुए। ये ओदी खेड है, कोई बंदा भी मुकम्मल नहीं, पर परिपूर्ण परमात्मा वैगुरु च कोई भी गुनाह नहीं। महाराज जी ने क्या हक्का कबीर करीम तू बेऐब, कोई ऐब नहीं। ते अगला शब्द वरत्या परवतगार। परवतगार दा लफ्जी अर्थ है जी पालना करने वाला। इस विच रिजक देन वाला भी आप कह सकते, पर मैं बेनती करा, कला रिजक देना लफ्ज भी सीमा भी बढ़ जाता है। पालना हर तरह की वो प्रतिपालना करता पाया परमात्मा। परिपूर्ण परमात्मा सब की प्रतिपालना करता, केवल इंसान की नहीं। जो कुछ उन्हें पैदा किया हर जीव को पालता पाया है। गुरु ग्रंथ साहिब च थोड़े जे बचन आप ले लेने, क्योंकि असल विच सच एवे बंदे तो वध चिंता तुरे संसार विच है ही कोई नहीं। माड़े तो माड़े कीड़े नूं भी वो चिंता कोई नहीं जिहड़ी बंदे नूं चंबड़ी। जहरीला सप कदी तुसी देखिया भी आ बिजली की तार नूं मूंह च पा के मरदा? कीड़ा जहरीले तो जहरीला भी है, ਉਹਦਾ भी चित नहीं करता मरन नूं, अपने आप नूं वो भी नहीं खत्म करता। जिन्हों 84 का आपां सरदार कहने आ, जिन्हों अकल का कोट कहने आ, बंदा ही चिंता का मारिया है। सच एवे एदी चिंता इत्थों तक लै जाती है, जिहड़ा कोई भी जीव कर्म करन नूं तैयार नहीं, जिन्हों असीं सुसाइड कहने आ। जिहड़ा सब का सरदार है उन्होंने इन्ना ही भरोसा नहीं, वो रोटी की खातर फा भी लैन नूं तैयार हो जाता। मेरी बेनती है, वो परवतगार सब की पालना करता है। पर इत्थे एक बेनती मैं होर नाल करांगा। परवतगार है, पर उन्होंने ये शब्द वरतने भी उसकी काणी वंड है, जिवें लोग कहते नहीं नहीं, गुरमत ने काणी वंड नहीं किया, गुरमत ने इस गल नूं चोज विडाणा किया। काणी वंड नहीं किया भी एक नूं बहुत कोई दे दिता, एक पल्ले कुछ भी नहीं। असल च ओहदे चोज विडाणा ने, ये ओहदे वक्रे वक्रे चोज ने। बेनती सब की पालना करता है, क्योंकि ओहदा सुभाव है। असी आसा की वार दी विचार इत्थे भी कोई दिन कीती सी पिछले समय च। मैं बेनती करा, पहली पौड़ी च बाबा जी ने करता शब्द बाद विच वरत्या, दाता पहला वरत्या। सुनियो, पालनहार है, उन्हें पहला करता लफ्ज नहीं वरत्या। उत्थे गुरु नानक साहब ने जिहड़े शब्द की वरतों की, आपी ने आप साजियो, आपी ने रचियो, नाऊ दुई कुदरत साजिए, कर आसन डिठो चाओ, अगे है दाता करता। करता दाता नहीं, वो पालनहार है ना। जेड़ी चीज वो करन लगा, जेड़ी चीज बनान लगा, जिस जीव दे विच जेड़ी हरकत पैदा कर लगा, सच ये वे उस वस्तु का निर्माण, उस जीव का निर्माण बाद विच कर रहा है। पहला वो दाते का फर्ज अदा करके ओदे रिजक का प्रबंध करता पाया। वो करता बाद भी सच्ची गल जी, दाता पहला है। दाता करता आप तू,
तुस देवें करें पछाओ। फिर मजबूरी च नहीं, कई बारी कई बंदे किसी नूं कोई देंदे ने मजबूरी दे मारे, महाराज कहंदे आ वो खुश हो के प्रसन्न हो के दात दिंदा। थोड़ा जाओ असीं देखीए, असीं अपने तो शुरू करिए। रामकली राग च गुरु अर्जुन देव जी का एक शब्द है, भावें उहदी व्याख्या पिछले दिनी काफ़ी कीती मैं। उस शब्द विच एक बचन कह, प्रथम है माखन पाछ है दूध मैलो कीनो साबन सूद। आजे परवतगार दी निशानी। तुसी जिन्ने बैठे हो, खास करके बीबियां नूं पता है, असी दुध नूं जमा के दही नूं रिड़क के तां मक्खण कढ़ने आ, पर कदी किसी घर दे विच मक्खण लिया के मक्खण नूं रिड़ के उहदे विचों दुध नहीं निकलिया। पर गुरु अर्जुन साहब कहंदे नहीं, प्रथम है माखन पाछ है दूध। दुध बाद विच आया, पहला मक्खण बना दिता। पावां कि साडे लोगां ने क्या पहला तत् परमात्मा आप सी, फिर उन्हें बुद्ध दा अर्थ आ माया कर दिता। पर जे सच एवे दो तुकां ध्यान नाल पढ़ो, परवतगार दे गुण ने कि प्रथम है माखन पाछ है दूध मैलो कीनो साबन सूद। जिहड़ा अत दा मैला सी उहनूं इस तरह चिट्टा कर दिता जिवें साबन नाल धो के कपड़ा शवेत होवे। हुण प्रथम है माखन की तर्क दे हिसाब नाल कि दही पहला होवेगा, ਉਹਨੂੰ ਰਿੜ ਕੇ ਦੁੱਧ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਾਗ ਲਾਂਗੇ ਦਹੀਂ ਬਣੇਗਾ, ਦਹੀਂ ਨੂੰ ਰਿੜਕਾਂਗੇ ਤਾਂ ਮੱਖਣ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲਾ ਮੱਖਣ ਸੀ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਦੁੱਧ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਸੱਚ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੀ ਬਣਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਰਿਜ਼ਕ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੀ ਖੁਰਾਕ, ਇਹਦੀ ਫੀਡ परमात्मा ने मां दे सीने विच मक्खन की तरह जमा दी। जदों उन्हें जन्म होया, मक्खन नूं पगला के उन्हें दुध बुला दिता। महाराज कहंदे प्रथम है माखन पाछ है दूध। ते ओह दुध जिहड़ा मैले शरीर विचों निकलिया, जिहड़ा सचमुच गंदगी दा पोटली है। प्रथम है माखन पाछ है दूध मैलो कीनो साबन सूद। प्यारिओ, उन्हें इस तरह चिट्टा बनाया जिवें साबन नाल धो के कपड़ा शवेत होवे। दो तीन प्रमाण होर मैं अर्ज करांगा, क्योंकि अज सब तो वड्डी समस्या जिहड़ी है, इक्को चिंता खाई जा रही, मेरी रोटी दा की बनेगा। ते कमाल दी गल, सब कुछ खोण दे बाद भी मन कही जा रहा है कि कल नूं मेरी रोटी किवें चलेगी, आउण वाले समय च मेरा की बनेगा। बेनती करां, बाबा नानक जी ने एक बहुत कमाल दा बचन किया है। एक सलोक आउंदा है, पिरंदा ना गिराह जार। उंज वैसे सी पंछियां नूं पिरंदे कह दिंदे आ। याद रखियो, परंदे का अर्थ पंछी नहीं, परंदे का लफ्जी अर्थ है पल्ला, गंढ, पल्ले कुछ बनना। पिरंदा ना गिराह ज़र। जेड़े पंछी ने उन्होंने अपने पल्ले कोई पैसा, कोई दौलत कुछ भी नहीं बनिया, ते रहिंदे ने वो रुख दे उत्ते। पिरंदा ना गिराह ज़र, को उन्हां कोल दौलत नहीं, कोई धन नहीं। दरख्त आब आस कर, रुख ते रहिंदे ने, पानी पींदे ने, दाना चुंदे ने, कदी उन्हां दे अंदर ये भुख इकट्ठा करन दी है नहीं। परंदा ना गिराह ज़र, दरख्त आब आस कर, देहांत सुई एक तुई एक तुई। रुख दे बैठे कोई पंछी परमात्मा रिजक दे रहा, वो पालन खा रहा। मैनूं याद है प्रोफैसर पूरन सिंह, उन्होंने गल बड़े कमाल दी कही। कहंदा जदों सिख गुरु कोल आके ਇਹ रो के कही जाए मेरी रोटी का की बनेगा। एक गल याद रखियो, कोई किसी नूं देण वाला नहीं, दाता केवल एक पार ब्रह्म परमेश्वर। ਉਹਦੀ गल मैनूं बड़ा टुंब के गई। वो कहंदा जिस गुरु दे दरबार च तू मत्था टेकना, इस गुरु ने तीजे जामे विच ओ लंगर, ओहदे घर विचों तां दरिया दीयां मच्छियां भी रात नूं रज जांदियां सन, ते तू क्यों चिंता करना पिया, रब तैनूं रिज़क जरूर दे। गुरु अमरदास वाल इशारा किया, कहंदा ओहदे नेड़े लंघण वाला दरिया क्या जांदा ना भी लंगर उत्थे प्रवाह किया जांदा सी। कहंदा ओह तां दरियावां दीयां मच्छियां नूं भी रिज़क दिंदा पिया। परिपूर्ण परमात्मा पालनहार है, वो सब दी पालना करदा है। एक शब्द है भगत धन्ना जी का। वाहिगुरू जी ये शब्द जदों असीं पढ़ने आ, दास भगत जी के अस्थान ते भी गया, जिथे उन्हां दा स्थान है टोंक। बड़े कई बिगे जे भगत जी के नां ते जमीन है, खूह है उन्हां दा।
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ, ਗੋਪਾਲ ਤੇਰਾ ਆਰਤਾ ਜੋ ਜਨ ਤੁਮਰੀ ਭਗਤ ਕਰਨ ਤੇ ਤਿਨ ਕੇ ਕਾ ਸਵਾਰਤਾ। ਭਾਵਾਂ ਕਿ ਤਰਕ ਬੁੱਧੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਭਗਤ ਤਾਂ ਨਗੁਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੇ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਦਾਲ ਸਿੱਧਾ ਇਹ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਉੱਚੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਧਨਾਸਰੀ ਰਾਗ 'ਚ ਆਪ ਜੀ ਆਸਾ ਰਾਗ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦ ਪਰੋ ਪਰਵਤਗਾਰ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 3 ਬਚਨ ਕਹੇ। ਇਨਸਾਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ, ਰੇ ਚਿਤ ਚੇਤਸ ਕੀਨੀ ਦਇਆਲ ਦਮੋਦਰ ਬਿਬੈ ਨਾ ਜਾਣਸ ਕੋਈ, ਜੇ ਤਾਵੇਂ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਖੰਡ ਕੋ ਕਰਤਾ ਕਰੇ ਸੋ ਕੋਈ। ਦੇਖੋ ਆਖ ਹੈ ਪਰਵਤਗਾਰ, ਉਹ ਸਭ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਚੋਜ ਵਿਡਾਣਾ ਹੈ ਉਸ ਚੋਜ ਵਿਡਾਣੇ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ। ਇਹ ਅਰਜ਼ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਵੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਦਾਤਾ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਦਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਚੋਜ ਵੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਾਤੇ ਇੱਕ ਭਿਖਾਰੀ ਜੀ ਸਭ ਤੇਰੇ ਚੋਜ ਵਿਡਾਣਾ। ਇਹ ਉਹਦੇ ਚੋਜ ਨੇ ਜੀ। ਵਜ਼ੀਦੇ ਨੇ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਕਹੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਸਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਵੇਖੋ ਲੋਕੋ, ਜਿੰਨੇ ਭੌਂਕ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਪਾੜਨੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਲੋਕ ਮਲਾਈਆਂ ਦੁੱਧ ਤੇ ਦਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਪਏ। ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਕਦੀ ਤੂੜੀ ਪਾਈ ਕਿਸੇ? ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਗਤਾਵਾ ਲਵੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਪੈਣਾ। ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗਤਾਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਵੇਖੋ ਰੱਬ ਦੇ ਰੰਗ ਕੀਨ ਦੇ ਚੋਜ ਨੇ। ਬੰਦਾ ਨੰਗੇ ਪੈਰ ਧੁੱਪ ਵਿੱਚ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਕੁੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਰਸ ਦੀ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਮੂੰਹ ਕੱਢ ਕੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੰਦੀਆਂ ਚੰਗਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਰੱਬ ਦੇ ਖੇਡ ਨੇ ਉਹ ਲਿਖਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਗਊਆਂ ਦਿੰਦਾ ਘਾਹ ਮਲੀਦਾ ਕੁੱਤਿਆਂ, ਜਾਗਦਿਆਂ ਦੀ ਖੋ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਸੁੱਤਿਆਂ। ਜਿਸ ਗਾਂ ਨੇ ਦੁੱਧ ਦੇਣਾ ਉਹਨੂੰ ਤੂੜੀ ਪਾਈ ਗਈ, ਉਹਨੂੰ ਪੱਠੇ ਪਾਏ ਗਏ। ਜਿੰਨੇ ਕੇਵਲ ਭੌਂਕ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਤਨ ਪਾੜਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਲੋਕੀ ਗੋਦੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮਲਾਈਆਂ ਖਵਾਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਰੱਬਾ ਤੈਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਜਿਹਨੂੰ ਤੂੜੀ ਦੇਣਾ ਉਹਨੂੰ ਮੱਖਣ ਦਿਖਾਈਏ? ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਚੋਜ ਨੇ ਜੀ। ਸਿੱਖ ਨੇ ਕਦੀ ਉਹਦੀ ਕਿਰਤ ਤੇ ਤਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਗਊਆਂ ਦਿੰਦਾ ਘਾਹ ਮਲੀਦਾ ਕੁੱਤਿਆਂ, ਜਾਗਦਿਆਂ ਦੀ ਖੋ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਸੁੱਤਿਆਂ। ਚੌਂ ਕੁੰਡੀ ਕਹਿ ਪਾਣੀ ਥਰ ਸਲ ਬਸਰ, ਵਜੀਦਿਆ ਕੌਣ ਕਹਿ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇੰਜ ਕਰ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਉੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਰਿਪੀਟ ਹੈ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਟੁਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਆਪ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੋਵੇ, ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਉੱਚੀ ਪੋਸਟ ਤੇ ਜਾਏ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਾਲੇ ਦੀ ਉਨੀ ਕੀਮਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੇ ਇਸ ਮੁਲਕ 'ਚ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿਆ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ IPS ਅਫਸਰ ਬਣਿਆ, PCS ਬਣਦਾ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਮਾਪੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਗਹਿਣੇ ਪਾ ਪਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਇਹ ਮੁਲਕ ਹੋਵੇ, ਇੱਥੇ 10ਵੀਂ ਫੇਲ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ CM ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿੰਨੇ 32 ਸਾਲ ਲੈ ਕੇ ਡਿਗਰੀ ਲਈ ਉਹ ਧੁੱਪ 'ਚ ਖਲੋਤਾ, ਉਹ ਅਨਪੜ੍ਹ ਦੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦਾ ਕਦੋਂ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰਾਂ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦੇ ਰੰਗ ਨੇ ਨਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਕੋਪ ਮੰਤਰੀ ਸਹੁੰ ਚੋਣ ਲੱਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਆਇਆ। ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਇਆ, ਉਹ ਕਿ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਮੂਰਖ ਨੂੰ ਅਸਵਾਰੀ ਹਾਥੀ ਘੋੜਿਆਂ, ਪੰਡਿਤ ਪੈਰ ਪਿਆਡੇ ਪਾਟੇ ਜੋੜਿਆਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇਖ ਤੇਰੀ ਖੇਡ ਕੈਸੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕੇਵਲ ਆਪਣੀ ਕੌਮੇ, ਆਪਣੀ ਈਗੋ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਰੰਗ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲਫ਼ਜ਼ ਵੀ ਸ਼ੁੱਧ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਦਵੀ ਕਰਕੇ ਉਹ ਲੋਕ ਡਿਗਰੀਆਂ ਵੰਡਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਨਪੜ੍ਹ ਬੰਦੇ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਖੇਡ। ਮੂਰਖ ਨੂੰ ਅਸਵਾਰੀ ਹਾਥੀ ਘੋੜਿਆਂ, ਪੰਡਿਤ ਪੈਰ ਪਿਆਦੇ ਪਾਟੇ ਜੋੜਿਆਂ। ਉਹ ਅੱਗੇ ਲਿਖਦਾ, ਕਰਨ ਸੁਗੜ ਮਜੂਰੀ ਮੂਰਖ ਦੇ ਜਾਏ ਘਰ। ਹੋਏ ਕਰਨ ਸੁਗੜ ਮਜੂਰੀ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ। ਖਿਮਾ ਕਰਿਓ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਅੱਤ ਦਾ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਕਥਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਦਾ, ਇਹਨੇ ਬੋਲਿਆ ਕੀ ਹੈ, ਬਖਸ਼ ਦਿਆ ਜੇ ਮੈਨੂੰ। ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਹੈ, ਇਹ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ਬਦ ਤਾਂ ਵਰਤੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕਿ ਤੇਰੀ ਖੇਡ ਹੈ। ਵਜੀਦਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੂਰਖ ਨੂੰ ਅਸਵਾਰੀ ਹਾਥੀ ਘੋੜਿਆਂ, ਪੰਡਿਤ ਪੈਰ ਪਿਆਦੇ ਪਾਟੇ ਜੋੜਿਆਂ, ਕਰਨ ਸੁਗੜ ਮਜੂਰੀ ਮੂਰਖ ਦੇ ਜਾਏ ਘਰ। ਵਜੀਦਿਆ ਕੌਣ ਕਹਿ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇੰਜ ਕਰ। ਇਹ ਪਿਆਰਿਓ ਚੋਜ ਵਿੜਾਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ, ਪਰਵਤਗਾਰ ਹੈ। ਸੱਚ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਬੜੇ ਅਕੀਦੇ ਵਾਲੇ। ਇਹ ਗੋਪਾਲ ਤੇਰਾ ਆਰਤਾ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣ ਕੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਪੁਰਨਾ ਬਣਾਈਏ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤਾਂ ਨਗੁਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੰਗ ਲਈਆਂ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਭਗਤ
ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਜੁੱਤੀ ਲਈ ਵੀ ਰੱਬ ਦਾ ਮੁਤਾਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਅਮੀਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਦੀ ਜੁੱਤੀ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਦੇਖੇ ਤੁਸੀਂ? ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਚੱਪਲਾਂ ਦੇ ਦੀ? ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਅਰਬਾਂ ਹੀ ਮੰਗਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਭਗਤ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਨਿੱਕੀ ਤੋਂ ਨਿੱਕੀ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮੁਤਾਜ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ ਵਰਤੇ, ਮੈਨੂੰ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਪਾਉਣ ਲਈ ਜੁੱਤੀ ਦੇ। ਪਰ ਆਹ ਦੇਖੋ ਅਕੀਦਾ ਕਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਪਾਲਣਹਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਕਹੇ, ਮੇਰੇ ਚਿਤ ਚੇਤ ਸਕੀਨੀ ਦਇਆਲ ਦਮੋਦਰ ਬਿਬੈ ਨਾ ਜਾਣਸ ਕੋਈ, ਜੇ ਤਾਵੇਂ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਖੰਡ ਕੋ ਕਰਤਾ ਕਰੇ ਸੋ ਕੋਈ। ਅਗਲੇ ਬਚਨ ਨੇ, ਜਨਨੀ ਕੇਰੇ ਉਦਰ ਉਦਕ ਮੈਂ, ਪਰਵਤਗਾਰ ਤੇ ਮੈਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਜਨਨੀ ਕੇਰੇ, ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ 'ਚ ਜੀਵ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਲੈਡਰ 'ਚ ਪੁੱਠਾ ਲਟਕਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਨਨੀ ਕੇਰੇ ਉਦਰ ਉਦਕ ਮੈਂ, ਪਿੰਡ ਕੀਆ 10 ਦਵਾਰਾ, ਦੇ ਆਹਾਰ ਅਗਨ ਮੈਂ ਰੱਖ ਹੈ, ਐਸਾ ਖਸਮ ਹਮਾਰਾ। ਪਰਵਤਗਾਰ ਉਹ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਿਜ਼ਕ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਦੇ ਆਹਾਰ ਅਗਨ ਮੈਂ ਰੱਖ ਹੈ, ਐਸਾ ਖਸਮ ਹਮਾਰਾ। ਮੇਰਾ ਪਰਵਤਗਾਰ ਮੇਰੀ ਕੰਨ ਦੇ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਸੁਣ, ਪਰਵਤਗਾਰ ਤੂੰ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਕ ਪਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਪਰਵਤਗਾਰ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਬਚਨ ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਤਿੰਨ ਜਿਹੜੇ ਭਗਤ ਜੀ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਤਾਰਕਿਕ ਮਨ ਨੂੰ ਮਸਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ, ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ 'ਚ ਰੱਬ ਅੱਗ 'ਚ ਜੀਵ ਨੂੰ ਰੋਜੀ ਦਿੰਦਾ, ਤੇ ਤਰਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਸੀ ਆਖਰ ਜੋ ਮਾਂ ਖਾਂਦੀ ਉਹੀ ਤਾਂ ਖਾਂਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਲੋਜ਼ਿਕ ਹੀ ਨਾ, ਜੇ ਮਾਂ ਖੁਰਾਕ ਖਾਂਦੀ ਬੱਚਾ ਪੜ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਮਾਂ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮੰਨੀਏ ਵੀ ਵਾਕਈ ਪਰਵਤਗਾਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਤਰਕ ਵਜੋਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮਾਂ ਦੇ ਉਦਰ 'ਚ ਕਹੇ ਜੋ ਮਾਂ ਖੁਰਾਕ ਖਾਂਦੀ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ, ਤੇ ਤਾਂ ਮੰਨੀਏ ਪਰਵਤਗਾਰ। ਜੇ ਮਾਂ ਵੱਖ ਹੋਵੇ ਤੇ ਰੋਜੀ ਦਾ। ਫਿਰ ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ ਦੂਜੀ ਉਦਾਹਰਨ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ, ਉੱਥੇ ਮਾਂ ਤੇ ਸੰਤਾਨ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ। ਪਰਵਤਗਾਰ ਨੇ ਕੈਸੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਕੱਛੂ ਕੁੰਮੀ ਪੰਛੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਂਡਿਆਂ ਉੱਤੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦੀ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਆਂਡੇ ਬਰੇਤੇ ਵਿੱਚ ਦਿੰਦੀ ਏ, ਆਪ ਕੱਛੂ ਕੁੰਮੀ ਪਾਣੀ 'ਚ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮੁਤਾਬਕ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦੀ ਪਰਪੱਕਤਾ ਜਿਹੜੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੰਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੱਛੂ ਕੁੰਮੀ ਦੀ ਮੰਨੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਗਲੇ ਦੇ ਧਿਆਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਕਹੇ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸੈਂਸ ਵਿੱਚ ਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਕੱਛੂ ਕੁੰਮੀ ਦੇ ਧਿਆਨ ਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਿਆਨ ਧਰੀ ਜਿਵੇਂ ਬਗਲਾ ਧਰਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਗਲੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਇਕਾਗਰਤਾ ਮੰਨੀ ਹੋਈ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ, ਬਗਲੇ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਕਿਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਧਿਆਨ ਦੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਜਾਂ ਧਿਆਨ ਨੂੰ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਬਗਲੇ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਨਹੀਂ ਲਈ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਸਾਨੂੰ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਤੋਂ, ਪ੍ਰਤੀਕਾਂ ਤੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਬਿੰਬ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚਲਾਣਾ ਕਰਦਾ ਨਾ ਪ੍ਰਾਣੀ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਕਰਨ ਨਹੀਂ, ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਾ ਬੰਦਗੀ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ ਕਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਦਰਿਆਵੇ ਕੰਨੇ ਬਗਲਾ ਬੈਠਾ ਕੇਲ ਕਰੇ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਹ ਤਾਂ ਮੰਨੋ, ਬਗਲਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਕਾਹਦਾ ਹੈ? ਬਗਲਾ ਕਾਹਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ? ਬਗਲਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਕਪਟ ਦਾ, ਬਗਲਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਅੰਦਰ ਮੈਲੇ ਧਿਆਨ ਦਾ, ਬਗਲਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰ ਪਖੰਡ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਗੁਰਮੁਖ ਲਈ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ, ਕੇਲ ਕਰਿੰਦੇ ਖੰਜ ਨੂੰ ਅਚਿੰਤੇ ਬਾਜ ਪੈ, ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ ਗੁਰਮੁਖ ਕਲੋਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਰੱਬ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਲੋਕ ਇਹਦਾ ਅਰਥ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੜ੍ਹਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੇਲਾ ਦੇਖੋ ਕਿੱਥੇ ਟੁਕ ਰਿਹਾ। ਦਰਿਆਵੇ ਕੰਨੇ ਬਗਲਾ ਬੈਠਾ ਕੇਲ ਕਰੇ, ਕੇਲ ਕਰਿੰਦੇ ਖੰਜ ਨੂੰ ਅਚਿੰਤੇ ਬਾਜ ਪੈ ਤਿਸ ਰੱਬ ਦੇ ਕੇਲਾਂ ਵਿਸਰੀਆਂ, ਜੋ ਮਨ ਚੇਤਨਾ ਚੇਤੇ ਸਨ ਸੋ ਗਾਲੀ ਰੱਬ ਕੀਆਂ। ਗੁਰਮੁਖੋ, ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਤੇ ਮੌਤ ਦਾ ਕਦੀ ਚੇਤਾ ਭੁੱਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਗਲਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ, ਮਨਮੁਖਤਾਈ ਦਾ ਹੈ, ਪਖੰਡ ਦਾ ਹੈ, ਪਰਪੰਚ ਦਾ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਰਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਦੋਂ ਧਿਆਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਤੁਕ ਵਰਤੀ ਹੈ, ਕੱਛੂ ਆਂਡਾ ਧਿਆਨ ਤਾਂ ਕਰ ਪਰਪੱਕ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਆਣੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਬਗਲੇ ਵਰਗਾ ਧਿਆਨ ਟਿਕਾ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਵਿਸ਼ੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਾਂਗਾ। ਪਰਵਤਗਾਰ, ਕੱਛੂ ਕੁੰਮੀ ਆਂਡੇ ਕਦੀ ਆਲਣਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ, ਬਰੇਤੇ 'ਚ ਆਂਡੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਬਾਹਰ, ਆਪ ਪਾਣੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ। ਹੁਣ ਆਂਡੇ 'ਚ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ। ਬੱਚਾ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ 'ਚ, ਪਰ ਕੱਛੂ ਕੁੰਮੀ ਦੇ ਪੇਟ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਉਹ ਵੱਖਰੀ, ਆਂਡਾ ਵੱਖਰਾ। ਭਗਤ ਜੀ ਦੀ ਉਡਾਰੀ ਦੇਖੋ,
वो इस तर्क नूं वढ के रख गए। जे कोई बंदा कहे भी मां रिज़क खांदी है तां बच्चे नूं पहुंचदा है, कच्छू कुम्मी तां आंडे दे नेड़े भी नहीं आई। आंडा दे दिता, सिर्फ कच्छू कुम्मी आंडे दा ध्यान टिकांदी है, इकाग्रता नाल अपने बच्चे दा चिंतन करदी है। ज्यों ज्यों इकाग्रता नाल ध्यान टिकांदी है गुरमुखो, त्यों त्यों उस बच्चे दे शरीर दे अंग बनते ने, बनतर बनती है, त्यों त्यों ओदे अंदर एनर्जी होर पैदा हुंदी है। भगत धन्ना जी कहते ने, भलिया वो परवतगार ऐसा है जे कच्छू कुम्मी दा आंडा बाहर है, मां आंडा देण वाली पानी विच है, परमात्मा तां ओदे आंडे विच पलदे होए बच्चे नूं भी रिज़क देई जांदा, एनर्जी तां उहनूं भी दे रहा है। पहलियां तुकां सन, जननी केरे उदर उदक में पिंड किया 10 द्वारा, दे आहार अग्न में राख है ऐसा खसम हमारा। अगलियां तुकां ने, कुम्मी जल में तन तिस बाह, राग आसा। कच्छू कुम्मी पानी च तन दा अर्थ दे आंडे बाहर, कुम्मी जल में तन तिस बाहर, पंख खीर तिन ना की, ना तां खंभ ने उड़ के चले जान किते। खीर दा अर्थ एक इंसानी मां दुध पीए, ओदे उदर च बच्चे नूं खून ना ही ताकत मिलती है। कहन लगे कच्छू कुम्मी तां दुध भी कोई नहीं पींदी पे, ना ओदे बच्चे नूं कोई खीर दा अर्थ कोई दुध दे रहा। कुम्मी जल में तन तिस बाहर, पंख खीर ते नाही, पूर्ण परमानंद मनोहर समझ देख, मन माही मेरे मना तू समझ। जे मां दी दूरी बन जाए तो रिज़क परमात्मा फिर भी देता है। पर इंसान ने फिर कहना सी, लो जी आखिर ध्यान नहीं तो एनर्जी मिल रही है ना। क्योंकि जो बंदा मैं ना मानू, अगली जिहड़ी उदाहरण दी उन्हें सिरे ला दी गल। कह लगे कच्छू कुम्मी दे ध्यान नहीं बच्चा पलदा है, पर सच ए वे पत्थर विच कीड़ा पिया है, पत्थर चार चफेरिओ बंद है, उन्होंने तो ध्यान देण वाली मां भी कोई नहीं। पाखन कीट गुप्त होए रहता, तांचो मार्ग ना की। पत्थर दा कीड़ा सचमुच पत्थर विच गुप्त है, कोई मार्ग कोई रस्ता भी नहीं। भगत धन्ना जी कहते परवतगार पत्थर विच पलदे होए कीड़ियां नूं भी रिज़क पिया दिंदा है, क्योंकि ओदा वर्गा पालनहार कोई होर नहीं। पाखन कीट गुप्त होए रहता, तांचो मार्ग नाही, कहे धन्ना पूर्ण ताहू को मत रे जी, डराही मेरे मना तू डोल ना। वो मां दे उदर च पालदा है, सच एवे कच्ची कुम्मी दे बच्चे पालदा है, वो तो पत्थर दे कीड़ियां नूं भी पालदा है। कहने राजे ने किला बनाया बहुत सोहना, कई साल लगे किला बनांदे, पत्थर चिन चिन के घड़ घड़ के किला बनाया। ते ओदा मुरशद ओदा गुरु ओनू किले विच लिया चरण पवाण वास्ते। ते जदों उन्हें देखा पुछया किन्ना समा लगा, दस दिता इन्ने साल लगे, इन्ना पैसा लगा। ते नाल शब्द वरत के कहंदा जे मैं किला ना बनांदा इन्ने साल मजदूरां नूं रोटी नहीं सी मिलनी। मैं किला बनाया, पत्थर लाण वालियां ने मजदूरी की, उन्हां दे कई साल रिज़क चलिया। ओदा मुरशद उत्ते रुक गया, उन्हें कहा पत्थर बच गया, जमीन ये लाया नहीं काम, तो कहंदा बच गए। क्या जांदा, उन्हें क्या पत्थर तोड़ोगे? भारे हथौड़े नाल जो पत्थर तोड़िया, टुटन दे आसार उहदे विचों कीड़ा निकलिया जिहड़ा पत्थर दे विच खा रहा सी। उन्हें बांह पकड़ के क्या वो पत्थर लाण वाले ने तो तू रोटी देना है, जिहड़ा पत्थर विच बैठा उन्होंने किहड़ा रोटी दे रहा सी, तू तां पत्थर लाण वाले नूं दिहाड़ी दित्ती। गुरु नानक साहब कहंदे ने मैं उहदे अगे अरदास कर लगा, कन दे के मेरी बेनती सुन। तू परवतगार है, हक्का कबीर करीम तू बेऐब परवतगार, तू सब नूं रिज़क देना। सच एवे जड़ चेतन सब नूं। गुरु गोबिंद सिंह जी दे बचन के दीनन की प्रतिपाल करै, नित संत उबार गनी मन गारै, पश पशु नग नागड़ राधव सर्ब समय सबको प्रतिपार है। पोखत है जल में थल में पल में कल के नहीं कर्म विचार है, दीन दयाल दया निध दोखन देखत है। किन्ने गुनाह देखता है। सच्ची गल अपने फुरनियां वाल देखिए तो रोटी एक दिन भी नसीब नहीं होनी चाहिए धर्म की व्याख्या मुताबक, पर इन्ना पालनकार है अकिरत घणा नूं पालदा परवतगार है ना। वो गुण अवगुण देख के नहीं पाल रहा, ये उहदा सुते सुभाग है, वो करते तो पहला दाता है। महाराज कहते दीन दयाल दया निध दोखन देखत है, पर देत ना हारे।
मैं फिर बेनती करांगा, इस फारसी दे शब्द विच पहलियां दो तुकां विच सिर्फ परमात्मा दी सिफत ते अरदास है, तां अरदास ते सिफत दोनों इकट्ठे है। जिवें तुसी तनासरी राग च पढ़दे हो, तुम दाते ठाकुर प्रतिपालक नायक खसम मारे, बस आई ओदी व्याख्या। तुम दाते ठाकुर प्रतिपालक नायक खसम मारे, निमख निमख तुम ही प्रतिपालो कम बारिक तुमरे तारे। निमख निमख ओ प्रतिपालना करदा पिया है। महाराज कह रहे ने, यक अर्ज गुप्तम पेश तो दर गोश कुन करतार, हका कबीर करीम तू बेऐब परवदगार। हुण अगलियां दो तुकां जेड़ियां ने वो रहाओ दे बचन ने, ध्यान दिया जे थोड़ा जे। वो बचन ने दुनिया मुकामे फानी, ये इत्थे पहली तुक संपूर्ण है। दुनिया का लफ्ज भावें असी संसार करने, जगत करने, मुकाम का अर्थ है टिकाना, ते फानी का अर्थ इन्हें नाश हो जाना। ध्यान नाल सुनो, जिस दुनिया च मैं तुसी रह रहे हैं, सच ए वे इस धरती ने एक दिन फना होना है। जिन्हों मैं तुसी अपना घर टिकाना कहने पे, हकीकत विच हर टिकाना जिहड़ा एक दिन बिनस जाएगा। दुनिया मुकामे फानी, तहकीक दिल दानी। थोड़ी एकाग्रता फिर बख्शो गुरमुखो। तहकीक दा अर्थ तहकीकात कर, पड़चोल लै, सच जान। तहकीक दिल दानी, दानी दा अर्थ है जान, सियाणा बंदा। कहते ने ओ मेरे दिला इस गल नूं सच करके जान। मैं तेनों एवें नहीं कह रहा, ये जिस दुनिया च तू रहना पे, सचमुच दुनिया के टुकड़े ने एक दिन बनस जाना। उंज वैसे दुनिया के अर्थ मैं किते जगत। एक विद्वान ने दुनिया का अर्थ वखरा किया, संसार का वखरा किया। वो संसार का अर्थ दुनिया नहीं करता। वो कहता संसार का अर्थ है जिहड़ा चक्कर ला रहा। संसार का अर्थ परकर्मा ही, नाशवानता नहीं। संसार लफ्ज की तुसी गहराई च जाओगे, अर्थ है जिहड़ा घूम रहा है। एक बार मैं अर्ज बेनती की सी कि जिहड़ी परकर्मा है ना, गुरु साहब ने सानू बख्शिश की। भावें मनमत लोग कहन लग पे, कर्म कांड करन लग पे, जागरूक जिहड़े सो काल्ड जागरूक। याद रखो, परकर्मा जिस दिन दुनिया च खत्म होगी, उस दिन दुनिया खत्म हो जानी। परकर्मा जिंदगी है जी। गुरु साहब ने भाई नंद लाल साहब नूं जिहड़े बचन कहे उहदे विच कहा कि सिख सवेरे उठ के जदों गुरुद्वारे आवे तो गुरु ग्रंथ साहब दीयां 3 परिक्रमा करे। प्रभात समय करके इशनान, 3 प्रदक्षिणा करे सुजान। मैं रिपीट कर लगा, कथा क्यों PTC ते चलनी है, सरोतिया दर्शका देखनी सुननी है। याद रखो, जे परिक्रमा ना हुंदी आ दिन रात कोई नहीं सन बनदी। धरती परिक्रमा है ना जी। आ लावां दियां भी जेड़ियां परिक्रमा ने, इहदे बड़े गहरे असर अर्थ ने। असी मजाक च कह दिंदे 4 भवांटलियां। चेते रखो, जिस बंदे नूं परिक्रमा करन दी जांच आ गई, ओदी जिंदगी विच आत्मक खेड़ा जरूर आवेगा। परिक्रमा हुंदी उत्थे जिथे खिच हुंदी है। जिथे खिच नहीं उत्थे परिक्रमा की है। धरती अपने धुरे ते घुमदी है, परिक्रमा करदी। जे धरती दी परिक्रमा रुक जाए तो इत्थे जिंदगी का खात्मा हो जाएगा। गुरु ग्रंथ साहिब तां सूरज चंद्रमा की परिक्रमा का जिक्र करते। भै भी सूरज भै विच चंद को करोड़ी चलत ना अंत प्यारिओ। सूरज परिक्रमा कर रहा, धरती परिक्रमा कर रही है, सारे ग्रह उपग्रह एक दूजे की परिक्रमा। ये सूरज किसी वड्डे सूरज की परिक्रमा कर रहे, वड्डा सूरज होर वड्डे की परिक्रमा करे, तो साइंस ने सिद्ध कर दिता। संसार लफ्ज तां कहा जाता क्योंकि चक्कर विच घुमदा पिया है, तां इहनूं संसार कहने। अगले शब्द ने दुनिया। उहदे अर्थ मैनूं चंगे लगे। वैसे कोश च अर्थ नहीं है, कोश अर्थ जगत ही, संसार ही है। उन्हें इहदा संधि छेद कर दिता। वो कहता है, असी अक्सर कहने लोग दातरी दे, साडे पिंडां च कहंदे सन जी, दातरी दे दंदे एक पासे ने, दुनिया दे 2 पासे। इस तरह है ना। उन्हें दुनिया दे अर्थ किते, दद्दे नूं औंकड़ लगी 2 नैया। नैया दा अर्थ है बेड़ियां। कहंदे ने जिन्हां लोकां च तुसीं रहिंदे हो, 2 बेड़ियां सवार दे, जिहड़ी डुबदी दिसे छड़प्पा मार के दूजे विच पैर रख जांदे। ये कहंदे 2 नैया विच सवार ने। चलो उन्हें अपने ढंग नाल अर्थ कीते, पर असी दुनिया दे अर्थ करांगे जिस प्लैनेट ते आपां रहने। मैनूं भी दुनिया नहीं कह सकांगे।
ये प्लैनेट तो इस तरह है निक्का जिहा। पिछले दिन सैन फ्रांसिस्को यूनिवर्सिटी के एक प्रोफैसर ने ना लैक्चर देना अपने सिंह सुनने वास्ते गए, तो मेरी रुचि सी चलो भी जेड़ी गल नवी मिले। वो बंदा स्पेस ते काम कर रहा विज्ञानी, वो 2 घंटे बोलिया, 35 साल की उसकी उम्र है जी। 2 घंटे बोलन तो बाद उन्हें इको गल कही, कहता भी अपनी ईगो नूं मार लो चंगे रह जाओगे। शब्द अगला की वरत्या, कहता जेड़ी साडी धरती है ना, कहता जिन्नी समझ सानू पई है पर साडी समझ दा अंत नहीं। कहता साडी धरती दी खोंद इन्नी कु है जिवें 1000 मील बीच उत्ते समुंदर दा किनारा, 1000 मील बीच उत्ते निक्का जिहा रेत दा कण पिया होवे। चेते रखियो धरती दी खोंद एक रेत दे कण जिंदी है। इन्ना कुछ रब ने सिरजिया, वो बंदे खोज करके गल कर रहे, ते जिदी खोंद साइंस दी नज़र च रेत दा किणका है, असीं ते फुल्ले नहीं समांदे पे। इस किणके च बैठे एटम बम बनी बैठे। हजूर ने ते शब्द वरते, दुनिया मुकामे फानी। इस दुनिया का अर्थ केवल प्लैनेट नहीं, जो कुछ धरती दे है, जो कुछ नहीं भी दिसदा, हर चीज ने एक दिन फना हो जाना है। शुरुआत आपां करांगे गुरु तेग बहादुर साहब के बचनों तो, क्योंकि मैं इत्थे लफ्ज शरीर की नाशवानता नहीं लै, इत्थे जगत की नाशवानता है। शरीर की खोंद किन्नी को है। गुरु तेग बहादुर साहब के श्लोक आप जी पढ़ दिओ। हजूर के 57 श्लोकों च 3 श्लोक खास करके जगत रचना बारे। बारिश होंदी, बुलबुले निके निके बनते, सारे समझ जाने श्लोक मैं की बोलन लगा। उत्थे पानी का बुलबुला शरीर नूं नहीं किया, उत्थे जगत नूं किया। फिर सुनियो, जगत की होंद का किसी नूं कोई पता नहीं। किसी बंदे नूं पता है कदों सब कुछ बनिया? ते मेरा ख्याल जिथे गुरबाणी ने कह दिता सानू उस चुप नूं मन लेना चाहिए। जे बाबा जी कहंदे आ जा करता सिरटी को साजे आपे जाने, सोई जिन्हें सिरजिया उन्होंने पता होवे, तू क्यों एवें खोली जाने। एक विद्वान कहंदा एवें भविखबाणियां ना करी जाओ। कहंदा दुनिया तां उस किताब की तरह जिहदे आद वाले पन्ने भी किसी ने लभे, जिहदे अंत वाले पन्नियां दा पता भी कोई नहीं। आ जिहड़े पेज 4 तेरे कोल ने सांभी रख, ਇਹਦੇ ਆਦ ਦੇ ਪੰਨੇ ਕਿਨੂੰ ਲੱਭੇ, ਇਹਦੇ ਅੰਤ ਦੇ ਪੰਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ, ਬਾਰਿਸ਼ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਬੁਲਬੁਲਾ ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਬੁੱਧ-ਬੁਦਾ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਇੱਕ ਖਿੰਨ ਵਿੱਚ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਅੱਖ ਝਮਕ ਕੇ ਖੋਲੋ ਤੇ ਉਹ ਹੀ ਬਿਨਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਦੇਹ ਨੂੰ ਬੁੱਧ-ਬੁਲਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ, ਮੈਂ ਰੇਤ ਦਾ ਕਿਣਕਾ ਤਾਂ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ, जे जगत की खोंद जेड़ा जुगां तो कायम है, जगत की खोंद पानी दे बुलबुले की तरह है, तो जेड़ा बुलबुले विच पैदा होया उहदी किन्नी कुछ होंद होवेगी। जगत बुलबुले की तरह है, इंसान दा शरीर नहीं। महाराज जी ने कहा जैसे जलते बुदबुदा दुनिया मुकामे फानी, जिमें पानी चो निकलिया होया बुलबुला, जैसे जलते बुदबुदा उपजै बिनसै नीत, जग रचना तैसे रची कहो नानक सुन मीत। कहने मेरे मित्र ध्यान न सुन, जगत की रचना इस तरह जिमें पानी का बुलबुला है। मैं फिर बेनती करा, जे बुलबुले की खस्ती इन्नी है तो असी जेडे बुलबुले विच बैठे हैं, साडी होंद की होवेगी। जैसे जलते बुदबुदा उपजै बिनसै नीत, जग रचना तैसे रची कहो नानक सुन मीत। दूसरा महाराज जी का प्रमाण है, हजूर ने फरमाया, धन गुरु तेग बहादुर साहब कहते हैं कि ज्यों सुपना अर पेखना। हालांकि अर लफ्ज में ला दिता ना, अर दा लफ्जी अर्थ दुश्मन भी है ते अर दा लफ्जी अर्थ अते भी है। इत्थे सुपना पेखना कट्ठे अर्थ ना करिए, गल नहीं बनेगी। ज्यों सुपना अर पेखना, जिवें सुपना अते सुपना वेखना नहीं। पेखना दा लफ्जी अर्थ है तमाशा। मैं ये अर्थ यूं करांगा, तमाशा। जिमें सुपना आपां देखने ते सुपने की खोंद किन्नी कूक है। सियाणे कहंदे आ सुपना कुछ सकिंट दा हुंदा है, पर जागन तो बाद लगदा मैं सारी रात सुपने लैंदा रहा। सुपना कुछ सकिंट दा प्यारे, सुपना सारी रात दा धागा ही नहीं। उस बेहोशी विच एक सकिंट भी सारी रात लगदा। महाराज कहंदे ने जिवें रात नूं सुपना आया
सच एवे ए जगत दी रचना सुपने दी तरह है। दूसरा बचन किया जिवें तमाशा है, बाजीगर खेल करदा जादू दी खेड। इनू कबीर साहब ने शब्द वरत्या, ये जो दुनिया सेहर मेला, शहर मेला नहीं पढ़ना, मेरी बेनती है। सस्से नू सिहारी लगी, सेहर दा अर्थ है यादू, आ खेड तमाशे। कहते जिस दुनिया च तुसी रहे हो ये जादू दी खेड है, ये बाजीगर दी खेड है। जो कोई दसदा पे ने एक दिन बिरस जाना है। ये जो दुनिया सेर मेला दस्तगीरी ना है। ज्यों सुपना अर पेखना, जिवें सुपना अते रात नू तमाशा देखना। महाराज कह रहा ये दोनों स्थिरनी, ज्यों सुपना अर पेखना ऐसे जाको जान, इनमें कश साचो नकी नानक बिन भगवान। पहली बेनती पानी दा बुलबुला, दूजा शब्द सुपना ते तमाशा। तीजा बचन महाराज जी ने कहा कि जग रचना सब झूठ है, दुनिया मुकामे फानी। जग रुचना सब झूठ है, जान रहो रे मीत, कह नानक थिर ना रहे ज्यों बालू की पीत। मेरे कहन तो मुराद सी, जे संसार रेत दी कंध है, जे संसार पानी दा बुलबुला है, जे संसार तमाशे दी आ जादू दी खेड है, जे संसार रात दा सुपना है, ते प्यारे जेड़े आपां इस संसार विच रहने साडी होंद किन्नी कुछ है। सतगुरु ने कहा ये दुनिया जिस मुकाम ते आपां बैठे हैं प्यारे, इन्हें एक दिन बिनसना है। ते सच इस धरती ते पता नहीं किन्ने को चले गए, कले आपां नहीं। वाहिगुरू जी तवज्जो दे के बेनती सुनियो। आ सूरज सदियां तो जुगां तो चमक रहा है। गुरु नानक साहब मुताबिक एक दिन सूरज भी खत्म होगा, खात्मे वाल जा रहा। चंद्रमा रात को शीतलता ही देंदा है। गुरबाणी मुताबिक एक दिन चंद्रमा का भी खात्मा होना है, जिन्हों असी सप्त समुंदर कहने। एडा भड़िया समुंदर एक दिन असगा पानी ने भी खत्म हो जाना है। गुरु साहब का शब्द है, ना सूर सस मंडलो, ये फना होने वाला है। ना सूर सस मंडलो, ना सपत दीप न जलो, अन्न पानी थिर ना कोई, एक तू ही, एक तू ही। परमात्मा सिर्फ केवल तूवें। गुरु नानक साहब ने एक शब्द मुकाम बारे उच्चारण किया। उस शब्द दियां तुकां ने कि मुकाम तिस नूं आखिए जिस सिस ना होवी लेख, आसमान धरती चलसी मुकाम ओही एक। आसमान धरती हर चीज जाएगी, सिर्फ एक टिकाना परमात्मा का है। दिन रब चले, निस सस चले, तारका लख पलोए, मुकाम ओही एक है, नानका सच बिगोए। मेरी बेनती है, जिस थां ते आपां रहने पे ये फना होने वाली है, यदि किन्नी कुछ सारी होंद है। वाहिगुरू जी इस नाशवंता विचों भी सानू बहुत कुछ सीखने को मिलता। आपां कहांगे ते बड़े निराश जियां गल्लां शुरू हो गई, ढेंदी कला दियां हो गई। तो मैं बेनती करा, जे मान लिया जाए तुसी नाशवानता का नाम ही जिक्र करो, फिर भी तो आपां नाश होनी है ना। कि आपां जे कहिए मौत नूं असीं चेते नहीं रखते, असीं मौत नूं चेते रखीए ना, पर मौत तां सानूं चेते रखदी पई है ना। असीं समझिए असीं नाशवान नहीं, पर जिन्हें सानूं समेटना उन्होंने तो पता है ना। बाबा फरीद साहब ने दे बारे 3-4 उदाहरण दित्तियां इस जगत की खेड़ बारे, उन्हें वखरियां दित्तियां ना। तो ध्यान ना सुनियो, मैं एक अर्थ थोड़े जे वखरे करने नूं दे च। वो है कत्तिक कुंजा, चेत डौ, सावन बिजुलियां, सियाले सोखंदियां, पिरगल बाहड़ियां। ये शुरू विच बचन आउंदा है, शेख हयाती जग ना कोई थिर रहा, जिस आसन हम बैठे केते बैस गया। बड़े सौखे जे अर्थ ने जी। जिस धरती ते मैं तुसी बैठे हैं प्यारे, पता नहीं किन्ने को बैठ के चले गए। ते दुनिया गल भी उल्टी कर दी है। गुरमुखो जिथे लोग जिन्हों बसदी कहंदे आ वो उजाड़ जे, गुरमुखो जिन्हों तुसी उजाड़ कहंदे हो वसदी है। बस्ती दा अर्थ जिथे लोग वसदे। कदी किसी बंदे ने शमशान घाट नूं वसदी नहीं किया। ते सच्ची मुच्ची दिल तरिंदा डरदा है। शमशान घाट दे नेड़े लगन लग्या भी बंदा कन्नी कतरांदा, रात नूं सोचदा नहीं। जिन्हों असीं उजाड़ कहने हो वसदी है।
मैनू बख्श दिया जे जिन्हों वसदी कहने उजाड़ गए। जिस घर च मैं वस रहा ये बस्ती नहीं, जिन्ने तुसी बस्ती शब्द वरतदे हो, बड़े शब्द असी बस्ती वरतने जिथे लोग रहिंदे आ। रूहानियत च देखो सचमुच जिन्हों बस्ती कहने वो उजाड़ गए। जिहड़ा उत्थे वसिया वो जरूर उजड़ेगा, जिहड़ा शमशान भूमि विच वस गया उन्हें कदी नहीं उजड़ना। उत्थे गए कोई वापस कदी आए? इस घर चों लोग निकलते देखे, शमशान घाट चों कित्थे निकले? बाबा फरीद साहब ने इहदे लई एक लफ्ज वरतिया, मैं बस्ती लफ्ज वरतिया, बाबे फरीद ने वसदी नूं निघरिया लफ्ज वरतिया। गोर निमाणी सड करे, कबर आवाज़ां मार के कहंदी ओ घर विच रहण वालिया निघरिया। हुण कमाल दी गल, जिहदा घर होवे कई घर होण, ये शब्द उन्होंने कह देना निघरिया, वो कहेगा मेरे ते घर ने। वो कहते ने जिस नूं तू घर कहना वो निघरा कहे, वो नाशवान कहे। असली घर तो तेरा मैं हाँ, निघरिया किन्ने कु देर तक घर तो डरदा रहेगा, एक दिन तेनू मेरे घर विच टिकना पेगा। गोर निमाणी सड करे निघरिया, घर आओ सर पर मैथ है आमना मरनू ना डरियाओ। सुनियो ध्यान नाल, कत्तक कूंजा आजे साडे मुलाब। असी बैठे हाँ महापुरखों की याद च। मैं सोचना तकरीबन मैं 93 च इत्थे कथा करदा रहा, समय नहीं बनया कित्थे चले गए चेहरे जेड़े इत्थे बैठे दिसदे हुंदे सन। मैं ये नहीं कि कोई इमोशनल कर ली, सच ये वो चेहरे नज़र नहीं आते पे। आपां कदी अमृत वेले उठ के उन्हां लोकां दी गिनती इहनूं नैगेटिव ना लिजाओ, उन्हां दी गिनती करके देखो घर च जिहड़े जा चुके आ, क्योंकि जिउंदियां दी गिनती हो जाती है, मरियां दी कदी भी कोई घर गिनती नहीं कर सकता। जिउंदे दी गिनती है। इस गल का अर्थ की है? असी घर च जी खां, भैन भरा ने, माँ बाप ने, पुत्र धियां पोते दोते ने। तुसी गिन के कह सकते हो मेरे परिवार विच घर च असी इन्ने जी रहने आ। पर मैं बेनती करा, जेड़े इस घर नूं जन्म देण वाले सन, जितों पुश्त चली वो इन्ने को मर चुके ने। घरां वालियां नूं भी चेता भुल गया किन्ने को चले गए। जिउंदे गिने जांदे आ, मुर्दियां दी कदी गिनती नहीं कोई। खत्म हो गई कहानी। कत्तक कूंजा ये वस दी उजाड़ है, ये फना होने वाली है। जेड़ी फना होनी है सचमुच बंदा उन्होंने कहता ये मेरी गए। जिन्हें सदीव काल ही रहना उन्होंने कदी अपनी बनाई नहीं। ताई सतगुरु ने कहा निज कर महल पाओ सुख सहजे बौर न होएगो फेरा। मृत मंडल जग साजिया ज्यों बालू करबार, बिनसत बार ना लागी ज्यों कागद बूंदार। ये मृत मंडल में लभ जड़ा उजाड़ वरत्या इस करके नहीं वरत्या भी गुरबाणी दी रोशन। गुरु ग्रंथ साहब ने मृत मंडल वरत्या। गुरमुखो इत्थे जेड़ा भी आया है वो मरन वास्ते आया, मैनूं दसो जिउण वास्ते किहड़ा इत्थे आया? सारे मरन की तैयारी च क्यों च लगे हाँ। इत्थे क्यों उम्र दे हिसाब लेना, उम्र के हिसाब नाल नहीं बननियां कि पहला 100 साल वाला अगे लाओ, उदू बाद 80 साल वाला खड़ा करो, उदू बाद 60 साल वाला, फिर छोटा बच्चा सब तो नहीं। मौत कदी उम्र के लिहाज ना लाइन बनाती नहीं। मैं रात भी उत्थे अर्ज की, इत्थे जन्म देने वाले बैठे रहिंदे ने, जिन्होंने जन्म दिता हुंदा उन्हां दीयां अर्थियां चुक के बेचारे शमशान घाट नूं तुरे होंदे। मौत कदी उम्र के हिसाब नाल पंक्तियां नहीं बनाती, लाइनां नहीं बनाती, वो तो पता ही कोई नहीं। बाबा फरीद ने शब्द वरत्या कत्तक कूंजा, फना होने वाली नाशवान है ना। कत्ते विच कूंजा आउंदियां, सानूं पता है साडे पंजाब विच भी कूंजा प्रवास करके आउंदियां ने। हुण तुसीं देखो कूंजा है ना, भादों च कोई नहीं, सौण च कोई नहीं, आईयां ने सियाल च, ते उन्हां नूं भी पता टिकाणे वो भी नहीं बनांदियां। उन्हां नूं पता एक दिन छड्ड के जाना। बाबा फरीद कहंदे आ वो भले बंदिया, ये दुनिया का मेला संजोग इस तरह है जिवें कत्तक विच कूंजा प्रवास करके आउंदियां, 2-4 महीने कड्ढणगियां चलियां जाणगियां। चेत डो मेरी बेनती है, ये अर्थ तकरीबन टीकाकारां ने अर्थ किया भी चेत जंगल की अग, यही अर्थ किया। मैं एक बार इत्थे बेनती की सी, मेरा ख्याल पाकिस्तान के एक स्कॉलर ने डॉक्टर नज़ीर अहमद,
उन्हें बाबा साहब की इस रचना के अर्थ ये नहीं किए। अग अर्थ यही ने भी जे चेत विच दे महीने च जंगल नूं अग लगदी है, याद रखो चेत च अग इन्नी कोई नहीं लगती, मैनू बख्श देना गर्मियां च अग ज्यादा लगती। गुरु ग्रंथ साहब मुताबक चेत ते वैसाख बसंत दे महीने ने। यह गल वक्री भी दरबार साहब विच बसंत माघी वाले दिन शुरू होंदा है ते होले महल्ले वाले दिन बसंत की संपूर्णता होंदी है। गुरु ग्रंथ साहब मुताबक माघ ते फगण दुहाई रब दी बसंत दे महीने नहीं, बसंत केवल चेत ते वैसाख। मैं मर्यादा ते नहीं कोई शक कर रहा। चेत वैसाख बसंत भली रुत महाराज जी ने कहा। वह कहता चेत डौ दे अर्थ समझो। वह कहता जदों तुसी चेत दे महीने च बसंत च बाहर निकलोगे ते इस तरह जंगल च फुल लाल खिड़िया जिवें अग दे अंगियारे खिड़े हुंदे आ। मेरी बेनती है दे भाव अर्थ नूं समझी। सुबह भी मैं एक बेनती की सी, अज सचमुच कथा विच अर्थ गवा चुके आ। अज असी अपने अपने भाई साहब की कथा सुननी चाहते हैं तो सुनना भी वह कुछ चाहते हैं जिन्ना को ज्ञान साडे कोल है, क्योंकि उस तो वध जे मिलेगा मेरी कौमे नूं चैलेंज करेगा कोई। असलीयत अपनी कौमे तक ज़्यादातर सुनने तैयार हाँ। चेत डाओ वो कहते ने देखो तुसी चार चफेरे फुल खिड़े आ, लाल रंग दे, पीले रंग दे, गुलाबी रंग दे। इंज लगता है जिवें धरती दे उत्ते खिड़े हुए फुल अंगियार की तरह विशे होण। कह लगे भले सज्जनों चेत विच खिड़े हुए फुल्लां ने सदा नहीं रहना। इत्थे भावें असी जंगल की अग अर्थ कर गए, मैनू इंज प्रतीत हुंदा अग दा रंग प्रतीक है फुल्लां वास्ते। फुल ही शब्द वरत्या। कतक कूंजा चेत डाओ फुल खिड़े खत्म हो गए। महाराज कहंदे ने सौण च बिजलियां चमकियां। बिजली सारा साल तो नहीं चमकनी। कतक कूंजा चेत डाओ सावन बिजलियां सियाले सोहंदियां पिरगल पहाड़ियां। व्यापारी सज्जन वापस आए। सियाल दे दिन विच पति दी सेज नूं माणिया, पर कुछ महीनों बाद उन्हें फिर तुर पैना है। सियाले सोहंदियां पिरगल पहाड़ियां। महाराज कहंदे चले चलन खार दुनिया मुकामे फानी। चले चलन खार विचारा ले मनो। अपने मन च विचार कर। गंडेंदियां 6 माह तुड़ंदियां हे खिनो। मेरी बेनती है, गुरु नानक साहब ने पहला वचन क्या, दुनिया मुकामे फानी रहाओ विच। कहंदे ने जिस मुकाम ते मैं तुसी बैठे हैं गुरमुखो इन्हें एक दिन फना होना है। इस धरती ने खत्म होना है, इन्हें बचना नहीं। अगले वचन जिहड़े सतगुरु ने कहे अंदर नूं झंझोड़ के रख दिंदे आ। कहंदे ने दिला तू समझदा क्यों नहीं? एवें मत समझ के बाणी च लिख दिता, कथा च कह दिता। दुनिया मुकामे फानी तहकीक दिल दानी। मेरे दिल तू समझ इस गल नूं सच जान। मैं ये अर्थ करांगा दानी दा अर्थ जान, तहकीक सच जान। दुनिया मुकामे फानी तहकीक दिल दानी। मेरे दिला ये सच जान, कला दुनिया फानी नहीं। मम सर मूवे। मम दा अर्थ है मैं, मेरे। सर दा अर्थ आपां सिवा में कीता सी सिर। मुवे दा अर्थ है वाल। गुरु नानक साहब कहंदे आ कि मेरे सिर दे वालां नूं मौत ने घुट के पकड़िया, मौत दे फरिश्ते। मम सर मुवे अज़राइल गिरफ्त है। गिरफ्त दा अर्थ हुंदा पकड़ना। मेरे सिर दे वालां नूं मौत दे फरिश्ते ने घुट के पकड़िया है। दिल खेच ना दानी। खेच ना कुछ भी नहीं। दानी दा अर्थ नहीं जानिया। ओ मेरे दिला तेरे सिर दे वाला नूं मौत ने घुट के पकड़िया है। तू कदी भी नहीं जानिया कि मेरी मौत इन्ने को नेड़े है। ये बेनती ध्यान नाल सुनियो। फिर गुरमुखो सच ये वे किसे बंदे नूं कोई पता नहीं कि मौत की घड़ी केड़ी है, पर इन्नी पक्की गल जे जिन्ने असीं तुरे फिरने आ ना साडे सिर दे उत्ते मौत कूकदी पई है। गुरु साहब ने शब्द वरते है सिर दे वाल घुट के पकड़े। कबीर साहब ने शब्द वरते है शिकारी तुरिया फिरदा है। जिथे दा लग गया उत्थे गोली मारेगा, जिथे दा लग गया उत्थे तीर चलाएगा। असी एक शब्द पढ़ने दिन ते पैर, पैर ते घरियां आप घटै तन छीजै। काल अहेरी फिरै बदक जो कहो कवन विद कीजै। मौत तां शिकारी दी तरह प्यारिओ साडे सारियां दे पिछे है।
कई बार इंसान समझदा नहीं इस गल नूं। ये जिन्ना बचन का यतन करता है मौत उन्नी उहदे नेड़े हुंदी है। सूफियां विच एक साखी सुनाई जाती है जी, सूफी दरवेशां विच कहंदे ने किसे नूं दस दिता गया कि फलाने दिन तेरी मौत हो जानी, उन्होंने कोई 2-4 दिन पहला दस दिता फलाने दिन तू मर जाना। उन्हें मौत तो बचन लिए सोचा मैं बहुत दूर निकल जाऊंगा, कोई साध नहीं रहेगा मेरे मरण का। वो घोड़े ते सवार होया, मैं बेनती की समझाने लिए कहानी। घोड़े ते सवार होया, घोड़े नूं अड्डी लाई दौड़ा दिता, सारा दिन घोड़ा दौड़ाया, रात नूं आराम किया, फिर दूजे दिन दौड़ाया, अपने टिकाने तो बहुत दूर पहुंच के अखीर ते घोड़े तो उतर के कहंदा हुण मौत इत्थे कित्थे आवेगी, हुण नहीं मैनूं आ सकदी। वो कहंदे उस वक्त जदों घोड़े तो उतरिया ते मौत ने उहदे मोढे ते सिर हाथ रख के कहा मैं भी चिंता तुरसा कि वक्त थोड़ा रह गया, इत्थे पहुंचेगा किवें, क्योंकि टाइम इहदा इत्थे लिखिआ, मैनूं चिंता सी किवें तू आएगा। शाबाश तेरे, तू मेरी चिंता नूं मिटा दिता, क्योंकि तेरे मरण की थां यही निर्धारित हुई सी। मैं एक बेनती करांगा, जिन्ने मर्जी बचा करो, वाल घुट के पकड़े ने मौत ने, पर दुख इस चीज का है, एक मर रहा है, दूजा संस्कार दे कोल करदा, शेरां दे भाई पुछी जांदा, एक सड़दा पिया, दूजा व्यापार की गल कर रहा, अजकल बड़ा मंदा चल रहा, क्योंकि उन्होंने एहसास नहीं कि जेड़ा ये सड़दा मैं भी इत्थे सड़ना है। याद रखो, बंदा मौत को हमेशा दूजे ते सट के चलता है, इन्हें मरना है, मैं नहीं मरना। जिदन अपने घर का कोई जाता उदों पहली बारी महसूस होता है कि मौत आती है, उस तो पहला नहीं जो होता पता। गुरु तेग बहादुर साहब ने शब्द वरते कि साधो रचना राम बनाई, एक बिन सै एक अस्तर मानै, अचरज लख्यो ना जाई समझ नहीं पैंदी। एक शब्द मैं होर कह के तुसी थोड़ा जा टिका बनाओ कि यह टिकाना जिथे मैं तुसी बैठे हैं धरती का, गुरु नानक साहब कहते ने फना हो जाना। बुल्ले ने क्या किथे है सुल्तान सिकंदर, मौत ना छड़े पीर पैगंबर, सब कर कर गए अडंबर, इथे कोई पाएदार नहीं, उठ जा कुराड़े मार नहीं। किथे चले गए वैगुरु, थोड़ा जा कदे मन च सोचिए, किन्ने को अपने को पूरां दे पूर चले गए, पता ही नहीं। सिर्फ घर दे ड्राइंग रूम च एक फोटो लगी है, वह भी पोते तक सीमित है, पोते दे घर पुत्र हो सकता, वह भी गारबेज गल नूं कर दे, इन्नी को खून दे बंदे थे। मैं बेनती की, मौत ने वालों तो पकड़िया ते जेड़ा वालों तो पकड़ीचा वही कहता मैनू परवाह नहीं, मैं लुक जाऊंगा मौत तो। गुरु ग्रंथ साहिब च एक शब्द है सलोक है सहस्कृति। मान लो एक बंदा मौत तो बचन लिए बड़े यत्न करता है, ते जिन्ना इंडिया च खिमा करियो मौत तो बचन लिए बंदे जोर लाते हैं, इन्ना किसी नहीं लगता। एक बंदे नूं बचाने लिए करोड़ां करोड़ां रुपइयां का टैक्स असी लोग भर रहे, छेती मार ना जाए। जिन्हों झैड सुरक्षा कहने पल्लिओ तो अपने जाता ना सारियां दियों, भी ये छेती ना मर जाए, इन्हूं कोई मार ना जाए। इस गल नूं भुलेखे चों बंदा कढ़दा, मन चों भुलेखा कढ़दा। गुरु अर्जन साहब का शब्द है, एक बंदा बड़ी वड्डी ताकत, उहदे किले बड़े बने, वो ये भी नहीं दसदा रात नूं मैं किहड़े किले च रहना, ते ताकत इन्नी है, हर बंदा ताकत वाला उहदे सामने झुकदा है, उहनूं मत्था टेकदा है। महाराज कहंदे ने उन्हें एक किला बनाया जिहड़ा पहाड़ी दे शिखर ते सी, उहदे चार चफेरे जिन्नी खाई है उन्हें डैम बना के उहदे च पानी भर दिता, तर के आउंदा है, बेड़ी पिछां चली जाती है। महाराज कहते उच्ची थां ते घर च बैठा है, उहदे पहरेदारां दी भी CID है, उहदे भी जसूस ने, किते पहरेदार गिटमिट करके ना फड़का दे। उंज वैसे महाराज ने बाणी च कहा, कहते अक्सर जुल्म करने वाले बंदे चाकरां दी गोली नाल ही मरदे, चाकर हथों मरना। गुरु ग्रंथ साहिब च बचन हुंदा, कमरा बंद है, कोई जी घर दा कोई नहीं, कला कहंदा भी हुण कोई परवाह नहीं। गुरु अर्जन साहब कहंदे आ इनू झल्ले नू पता नहीं
कि मौत तां तेरे वालों नूं पकड़िया, तू दरवाजे बंद करी बैठा, पानी दियां खाइयां भरियां। रात नूं होया कि सौ गया, सवेरे बूहा ही नहीं खुलिया। उन्हां बूहा तोड़िया। ये गुरु ग्रंथ साहिब दे मैं बचन कर रहा, थोड़े जे अर्थ शिंगारन लई। बूहा तोड़िया, वेख्या ते मूँह टड्डिया पिया ते अखां पुठियां ते मर गया रात दा। उन्हां वेख्या मरिया किवें? किसे बंदे नहीं मारिया, उसे पलंग दे उत्ते निक्की जी कक्की कीड़ी चढ़ी, उन्हें डंग मारिया, सवेर तक इहदी फूक निकल गई। गुरु साहब कहंदे आ बाहर खाइयां भरी बैठे, कीड़ी अंदर बैठी तेरी इंतजार कर रही। ये बचन है, बहुत जतन करता बलवंतकारी, सेवंत सूरा चतुर दिसै। गुरु ग्रंथ साहब जी बड़े यत्न किए, मैं मरना नहीं, पर गुरु साहब कहंदे क्यों नहीं दिला समझदा? केशा ने तेरी मौत ने केस कुट के पकड़े वाल। बहुत जतन करता बलवंतकारी, सेवंत सूरा चतुर दिसै। बिखम थान बसंत ऊंचा, न सिमरन मरण कदांच है। ओवंत आग्या भगवान पुरख है, नानक कीटी सांस अकरक ते। कीड़ी ने डंग मारिया, बंदे दे साह कढ ले। मेरी एक बेनती है, ये क्यों बाबा जी ने कहा? इस करके भी जिन्हों तू सच समझी बैठे झूठ है। मौत ने मेरे तुहाडे केसां नूं घुट के पकड़िया, पर करिए कि असीं शब्द भी बड़े बड़े सोहने घड़ने। वाहिगुरू कईयां नूं हो सकदा गल मेरी भाए ना, वो जदों किसी जवान की मौत हो जाए, बच्चा चला जाए, बहिंदियां सार पहली गल अजे जान का वेला कोई नहीं सी। अगले ने पूछे पड़विया भी जे जान का वेला नहीं तुर क्यों गया? जांदी वो ने जिन्हां दा वेला आ जांदा हुंदा। ये बड़ी गलत गल है जी, अजे जान का वेला कोई नहीं सी। बाबा जी ने क्या कल्ले आवे नानका सदे उठी जाए। असी उत्ते गुरु ग्रंथ साहब कोल बैठे जाने, नाल मैक पकड़ के भी जान का वेला कोई नहीं से, अजे अजे ने जाना कोई नहीं, क्योंकि झूठ बड़े चढ़ने। अज ही बाबा जी ने बैठी गल क्या चल रही सी भी जिन्ना झूठ भोग ते बोलिया जाता, दवाई रब दी इन्ना कोई नहीं जे बोलता। ज्यों झूठ बोलन लगदे, ये गुरमुख प्यारा सी जी, ये फलाना सी जी। वो नहीं प्यारिओ, जे तुसी हमदर्दी करदे हो ना किसे नाल, सच्ची मुच्ची उहदे भोग ते हमदर्दी रख दिओ। बस इक्को ही अरदास करो, दाता जिहड़ा मर गया ये कर्मा करके नहीं छुट सकदा, तू किरपा करके इहनूं बख्श दे। असी गलत कर रहे हैं। मैनूं याद है नरिंदर कपूर ने बड़ा सोहना राइटर ने लिखते ने, उन्हें एक बारी एक लेख च लिखिया, मैं समाप्ति कर लगा बिल्कुल राइट टाइम ते प्रकरण चलता रहेगा। वो कहना एक भोग ते बंदे गए जिहदी डैथ हुई, उसका नाम सी हरी सिंह चावला। इस तरह कोई नाम सी। हाँ जी, उन्हें मैक पकड़िया तो इको दम कहता हरी सिंह नलवे वर्गा बंदा कोई नहीं जमना। वो हरी सिंह नलवा कही जाए तो संगत विचों हसन लग पई, मरिया तो हरी सिंह चावला है तो हरी सिंह नलवा कही जाता। वो कहना नहीं नहीं है तो चावला ही सी, मैं इहनूं नलवा बनाता है। क्यों? कहना मैनूं टिकट मिलनी सी, टाइम 1.5 घंटे का सी। मैं क्या 50 गड्डी, इन्हें इन्नी गड्डी तेज पहुँचाई 1.5 घंटे च मैनूं चंडीगढ़ CM की कोठी जा लाता। मैं उदों बाद कहता तू तो हरी सिंह नलवा निकलिया। किड्डा वड्डा झूठ मारी जाता बंदा बैठा। मेरी एक बेनती है, मौत एक वो सच्चाई है। मेरे तुहाडे सब दे केसां नूं पकड़िया ते सच ये वे, कोई पता नहीं किहड़ी थां ते उन्हें केसां तो खिच लैना। सुत्तियां भी खिच सकदा है, जागदियां भी खिच सकदा है, बैठियां भी खिच सकदा है, रोटी खांदियां भी खिच सकदा है। याद रखियो गड्डी कल चलांदियां भी खिच सकदा है। गुरु साहब कहंदे आ ये टिकाणा बिनसन वाला है। फिर जे ये बिनसन वाला है फिर केड़ा टिकाणा? फिर मेरा गुरु ग्रंथ साहब कहंदा है साईं दे घर वर्गा टिकाणा नहीं, उत्थे पहुंचे हुए कदी धक्के नहीं पैंदे खुंदे। जक अर्ज गुप्तम पेश तो दर गोश कुन करतार, हक्का कबीर करीम तू बेऐब परवदगार। दुनिया मुकामे फानी तहकीक दिलदानी, मम सर मुवे अजराइल गिरफ्ते दिल खेचना दानी। ओ दिला क्यों नहीं समझदा लोकां दे भोगां ते। मैं सिर्फ समाप्ति मैं क्या सी 3 बंदे ना जी, वाहिगुरू जी मैं स्पष्ट कहना पिया, मैं भी उन्हां च शामिल हाँ। 3 च 3 बंदे मौत नूं छेती महसूस नहीं करते। एक नेता लीडर, एक शमशान घाट विच लकड़ा तोलन वाला। वाहिगुरू
तीसरा कीर्तनिया ते प्रचारक। सच्ची लकड़ां तोलन वाले कोल 5 साल का बच्चा लै जाओ, 32 साल का नौजवान लै जाओ, 90 साल का बुढ़ा लै जाओ। कई बारी तुसी देखते हो कोई परिवार वेट करता है भी अजे जी नहीं आए, फलाने आना फिर संस्कार करांगे, लकड़ां वेचण वाला काला पै जांदा, छेती अग लाओ मैं दूजी भी चिखा बनानी। ये सुनने मिलता है क्योंकि वो रोज़ काम कर करके इन्ना कोई यूज्ड हो गया है। ਉਹਦੇ ਲਈ ਭਾਵੇਂ ਬੱਚਾ ਮਰ ਜਾਏ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਭਾਵੇਂ ਜਵਾਨ ਮਰ ਜਾਏ, ਖਿਮਾ ਕਰਿਓ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮੌਤ ਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹਦੀ ਜੌਬ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਕੀਰਤਨ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਕਰਨੇ ਆ। ਸੱਜਣ ਮੇਰੇ ਰੰਗਲੇ ਜਾਏ ਸੁੱਤੇ ਜਿਰਾਨ, ਖੰਪੀ ਵੰਜਾ ਡੂਮਣੀ ਰੋਵਾਂ। ਪਰ ਪਿਆਰਿਓ ਕਦੀ ਰੋਂਦੇ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਏ ਆ? ਨਹੀਂ। ਸਾਡਾ ਵੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰਾਣਾ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਣਾ ਹੈ। महसूस नहीं होंगी मौत। जिस दिन महसूस हो जाएगी उस दिन सारी जिंदगी बदल जाएगी। रात भी मैं शायद रात ही क्या सी, अपनी सुरत नूं कदी उस वेले वाल जरूर ले जाओ। जिन्ने भी महापुरख होए ने उन्होंने मौत विचों जिंदगी लंबी है। जिन्हों मरण की जांच नहीं आई उन्होंने जिंदगी की जांच भी नहीं आनी। तां ही बाबा जी ने क्या, कबीर मरता मरता जग मुआ, मर पे ना जानिया कोई। सचमुच उन्हें लकड़ा तोलनिया ने, उन्हें शब्द पढ़ना है। तो बाहर तो इतों तक के ऐतवार नूं एक पासे शब्द पढ़ते होंगे ने, सज्जन मेरे रंगले जाए सुते जिरान, ते नाल ही कहते छेती करो अगलियां दे जन्मदिन का प्रोग्राम, नाल ही दूजा शब्द पढ़ते होंगे ने, पूता माता की असीस। मैं एक बेनती करांगा, ये नहीं कि शब्द मारना माड़ी गल, अंदर किनू महसूस कर रहा है? नहीं, मैं गाउणा है, मैनू पता है, मैं बोलना है। तीसरी बेनती है नेता, याद रखियो ਉਹਦੇ वास्ते मौत वोटां का एक इकट्ठ हुंदा है। भावें अपना मर जाए, भावें कोई पार्टी का मर जाए, भावें कोई रिश्तेदार मर जाए, वो माइक पकड़ के खलो के वेखदा किन्नियां को वोटां इकट्ठियां हो सकदियां। नहीं, जिहड़ा मौत नूं महसूस कर जाए, गुरु तेग बहादुर साहब ने कीता, सचमुच कीता। उन्हें सारी जिंदगी मौत का ही वखियान किया, मौत नूं गाया। पर कमाल की गल, जेड़े सारी जिंदगी मौत की गल करते रहे, जदों अपना अंतला समा आया, औरंगजेब ने 3 ही गल्लां कहियां, करामात, इस्लाम, जमौत। गुरु ने क्या पहलियां 2 तक कदाचित नहीं, उन्हें क्या फिर मौत। कहन लगे जेड़ा तू डरावा देंदा रहा, मैं तो जिदन की होश संभाली उदन के गीत ही ये गाना वा, मैं सिर्फ उन्होंने गा रहा। मेरी बेनती आओ गुरमुखो, आ घोड़ी मिली है, जिन्ने असी बैठे आप परत के मिलने कभी, भावें चलो बाबा जी की गल कर रहे हैं, शरीरक तौर पर तो सब ने जाना है। वो चले गए, आप तैयारी विच हाँ, तो यह पता कोई नहीं टाइम कदों बनना है। फिर भी अपने अंदर नूं शब्द बाणी नाल जोड़िए। कल सवेरे पूरे 8 बजे, क्योंकि हुण रात में टाइम घट तां लाया, मैनूं पता घरां नूं जाना, टाइम ज़्यादा हो जाना। सवेरे पूरे 8 बजे आपां इस लड़ी नूं अगे तोरांगे। रात दे दीवान विच कल नूं मुकम्मल करांगा। होइयां भुल्लां बख्श देणी।